हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली रजा। हम पाकिस्तान से हैं और आज मेजर साहब की वीडियो आई है। टाइटल है स्टेप्ड, सर्वाइव्ड एंड स्टिल स्टैंडिंग, मेजर आर्याज अनटोल्ड स्टोरी, करली टेल्स। देखते हैं भाई, करली टेल्स वाले हैं तो फिर तो भाई बड़ी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसकी लाइफ के बारे में पता चलेगा। मेजर साहब ने पहले हमने जनरल बख्शी के बारे में देखा था, वो भी बड़े अच्छे थे। अब देखते हैं मेजर साहब क्या कहते हैं। प्ले करें? नया प्ले करो। There will be violence between India and Pakistan. Again, we must understand that Pakistan is an enemy state. Blood will flow. Whether it flows this side of the border or that side of the border is a choice that India needs to make. India, on the other hand, has a no first use policy. We don't attack unless we are provoked. इज्जत ताकत की होती है, इज्जत मोरालिटी की, इज्जत अच्छे बन के नहीं होती। ये तो शर्म की बात है कि अटैक नहीं करा। आपका काम और क्या, अटैक करो ना उसको। तुर्की दुश्मन है, अजरबैजान दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है और ये दुश्मन रहेंगे। फौज में गलती माफी का स्कोप नहीं है। मैं तो गलती से एक बार चला गया था पीओ के। पकड़े नहीं गए ना? I was stabbed. My stomach was cut open. There was a guy who put a gun to my head. So I took the beating in silence. ये मेरे ये दांत वांत ऊपर सब तोड़ दिए लोगों ने. And they threw me in a ditch and then I crawled out. ये फट गया ना ये. बार-बार मुझे लंग की प्रॉब्लम हो रही थी. एक बार तो मैं पहाड़ से गिरा. आप बाहर से गिर गए। उसके बाद कितने टाइम तक you remained unemployed or did odd jobs? I struggled a lot. इधर अट्टा बाजार में मैं वेलवेट बेचता था. I removed my rank because मुझे ऐसी शर्म आती थी कि लोग बोलेंगे कि भारतीय सेना का अफसर ऐसे काम कर रहा है. The security guard says you can't enter. Your heart says that. There was a time when you commanded 120 men along the line of control. You faced off against the Pakistani army. है कौन जो मुझे ऐसी बात कर रहा है मुझसे? When you see failure ना, while it gives you an understanding, it also leads to a lot of bitterness. News channels पर चिल्लाकर बोलना. Do you think that is often criticized? Yeah, it is criticized and a lot of people from India don't like what I say and also the way I say it. मुझे वही आता है. Vijaya, how do you verify news? और कैसे वेरीफाई करोगे? आप शहबाज शरीफ को बोलोगे कि तू गीता पे हाथ रख के कसम खा के जो कहेगा सच कहेगा? और मैंने क्या गलत न्यूज दे दी है? लड़ाई में फेक न्यूज होती है. Is that not risky? When you entered the office, आपने देखा होगा. The police protection. I constantly receive death threats from Khalistanis, from Pakistanis, and now of course latest is that the Iranians it seems don't like me any longer. So आप नहीं डरते? डर तो सभी को लगता है. मैंने 48 घंटे के अंदर हनुमान चालीसा सीख ली लाइन ऑफ कंट्रोल में. जो मैं कर रहा हूँ वो मैं देश हित में कर रहा हूँ. आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ गाय हु विल डाई इन हॉस्पिटल बेड. मेरा काम सड़क पे ही होगा कभी किसी कोने में. नमस्ते, मैं हूं काम्या जानी और संदेश से आते हैं कि इस एपिसोड में आपका स्वागत है। Today we are going to be talking about a subject that all of India is passionate about and that is the safety of our nation. आज हम मिलेंगे उनसे जो खुद बॉर्डर पर अपना फर्ज निभा चुके हैं। Retired Army Officer Major Gaurav Arya. You've probably seen him on news channels voicing his thoughts passionately about the country. But today we go beyond the screens and find out about his personal journey. What made him wear the uniform and where does this fierce patriotism come from? Let's go to his office, Chanakya Forum, and find out more. Hello Major Arya, how are you? Hello ma'am, welcome to Chanakya Forum. Wow, it's a lovely office as I can see. It's a small office, but I'm glad that you liked it. This is our main conference room, Okay, and it's called Rizangla. Rizangla represents the battle honor of 13 Kumar Regiment. okay. Major Shaitan Singh, Battle of Rizangla, where we fought the Chinese in 1962. This is our small newsroom. So this is Dharma Rakshati Rakshita. So Dharma protects those who protect Dharma. So the path of righteousness. This is, I want to send it to the Ministry of Finance. Okay. From the strength of the treasury, the army is born. This is what Chanakya said. Is there a reason why you've called your firm as Chanakya Forum? Chanakya was the first Indian who imagined this concept of a unified Bharat in the face of the Greek invasion. He was the person who got everybody together and he says you must be united. Or his thoughts are the driving force behind our organization. In the month of December, in 1971, we fought against the Pakistan army
and we defeated 2 units of the Pakistan army, and they surrendered to us at Bhaduria. Bhaduria is now in Bangladesh. Yeah. So earlier East Pakistan. So this is the Battle of Bhaduria. And So hints of army life still exist in the way of your working, even in the corporate world. yeah, it's I very, know that we are not as disciplined as the army. even when we leave the army doesn't leave us. It's still inside somewhere. So yeah, this is the map that we have. तो इनमें से हमारा फ्रेंड कौन है, हमारा दुश्मन कौन है? फ्रेंड कोई भी नहीं है, दुश्मन ये है और दुश्मन ये है. दोस्त जो आपका है, फ्रेंड, a reliable partner. Your reliable partner is this. This is the state of Israel. This, France. These are reliable long-term partners. पर अब भी आप पंक्चुअल रहते हैं जहाँ जाते हैं. मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ. शॉपिंग के लिए भी जाएंगे तब भी. I don't know. I start feeling very uncomfortable that I've done. मैंने कुछ गुनाह कर दिया है, मैंने बहुत कुछ क्राइम हो गया बस. And it's all in the head actually. ऐसा कुछ है नहीं. I mean आप मॉल जा रहे हो. हाँ जी. ठीक है. You're going to the mall, or you're going to South X, or you're going to Connaught Place for shopping, but वो चीज़ है कि मेरे साथ I get very uncomfortable. थोड़ा सा डिले हो जाता है. That's all thanks to the army. Welcome. This is my cabin. This is where I sit. यहाँ पे शिव परिवार है और यहाँ पे फादर की फोटोग्राफ है. I'm sure he must be feeling very proud of you. Yes, I with do. all your achievements. What is more satisfying, your army job or what you're doing now for the country? Not the army any day. That's something that I'll always carry with me with a great deal of pride. Yeah. So yes. How are you assessing the relationship or the situation between India and Pakistan? पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे ऑफिस आए. It's a pleasure to host you. पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है और जब तक आपके पास पैसा नहीं है आप लड़ाई नहीं लड़ सकते. War is also a function of economics. It's also a function of money. बिना पैसे के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते. अगर कोई सोचे कि हमारे पास सिर्फ जज्बा है और that is like saying that my car does not have gas, only fumes, and I'll run a race on fumes of petrol. It doesn't work like that. तो खैर पाकिस्तान ने कोशिश करी, फिर पाकिस्तान पैरों पे लेट गया अमेरिका के, और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी गया. वहां पे भी उसने नॉन परमानेंट मेंबर है पाकिस्तान, टर्न बाय टर्न होते हैं. तो पाकिस्तान ने फिर जाके वहां पे अपनी गुहार लगाई और उनसे भी पाकिस्तान को फटकार पड़ी. क्या तुम बताओ ये लश्कर तैयबा का क्या चक्कर है, और तुम ये बताओ कि तुम लोग न्यूक्लियर सेवर रैटलिंग इतनी क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इंटेंट क्या है. तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को काफी डांटा डपटा. ट्रंप को ये ओपनिंग दिखी, पाकिस्तानियों ने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करा, और क्योंकि ट्रंप ने इतने फेलियर देखे थे, कोई उसकी बात नहीं मान रहा था, तो ट्रंप ने बोला ठीक है. ट्रंप लिसन. 3:30 बजे पाकिस्तान ने इनिशिएट करा कॉल टू आवर DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, जो कि कुमार रेजिमेंट के हैं. वी फेल्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम कि हमने पनिश कर दिया है पाकिस्तान को जितना हमने करना था. लोगों के दिल में रह गई थी हसरत कि और थोड़ा होना चाहिए था. मेरे खुद के दिल में हसरत थी कि अभी कुछ 10-15 दिन मरम्मत और होनी चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं और सीज फायर हो गया. उसके बीच में क्या हुआ कि चाइना का प्रेशर आया पाकिस्तान के ऊपर. एक बात आपके जितने भी दर्शक हैं वो भी समझ लें कि पाकिस्तान ऐतिहासिक तौर पे एक डबल गेम खेलता है, और पाकिस्तान का सेकंड नेचर है. जब आज की तारीख में पाकिस्तान कहता है कि रूस हमारा दोस्त है, लेकिन 1979 और 89 के बीच में पाकिस्तान के मदरसों में जो जिहाद पढ़ाया गया वो रूसियों के खिलाफ पढ़ाया गया था, जबकि वो रूसी अफगानिस्तान में थे. USSR हुआ करता था उस वक्त. सो दे वर इन अफगानिस्तान. तो पाकिस्तान तब से डबल गेम खेल रहा है. तालिबान से पैसा लेके अमेरिकन सोल्जर्स को मरवाया, अमेरिकन सोल्जर से पैसा लेके तालिबान को मरवाया. ये सारा काम पाकिस्तान करता चला है. पाकिस्तान ने यहाँ पे भी डबल गेम खेला. चीन को बताया नहीं, अमेरिका के पैर पे लेट गया, वहां पे अमेरिका के पैरों पे लेटा, सीज फायर के लिए अग्री कर गया. वहां से चाइना का प्रेशर आया पाकिस्तान के ऊपर कि पैसा ले लो, ड्रोन ले लो, हथियार ले लो, सीज फायर मत करना, इंडिया के ऊपर प्रेशर डालो. पाकिस्तान ने 4-5 घंटे के अंदर फिर से सीज फायर वायलेट कर दिया, जिसको पाकिस्तान ने प्रॉमिस करा था, और हमारे मीडिया ने कवर कराए, ड्रोन्स आ रहे हैं, ये सब दिखा वहां पे. मैं आज आपकी शो पे, जिसको कहते हैं ना, मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि दिस विल नॉट होल्ड. ये सीज फायर होल्ड कर ही नहीं सकता. इट इज इम्पॉसिबल. कोई बोल दे कि शांति हो जाए, देयर विल बी वायलेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अगेन. कारण क्या है? पाकिस्तान इज अ मर्सनरी स्टेट. आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेड़ा गर्क हो रखा है. पाकिस्तान को अमेरिका की मदद चाहिए IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन्स के लिए. ठीक है, इट्स अ चुंगी नाका स्टेट. तो वो पैसा कैसे कमाते हैं? आपने कभी देखा मेड इन पाकिस्तान का फ्रिज है, या कोई कार है, या कोई मोटरसाइकिल है, या कोई कपड़ा? वो कुछ तो नहीं बनाते पाकिस्तानी. दे मेक नथिंग एट ऑल. हाउ डू दे मेक मनी देन व्हेन दे डोंट मैन्युफैक्चर, दे डोंट हैव एनी सर्विसेज? सीज फायर उन्होंने अमेरिकन से बेग करा, फिर वो अमेरिकन से कंसेशंस भी मांगेंगे. सीज फायर के 24 घंटे पहले IMF अनाउंस करता है कि हम तुम्हें लोन भी दे देंगे $2.4 बिलियन का. यू सी, तो ये सारी की सारी चीजें चल रही है बैकग्राउंड में. पाकिस्तान फिर आपके ऊपर हमला करेगा.
आपसे मेरा मतलब है भारत के ऊपर अलग अलग जगह जहां तक ये कर सकता है पाकिस्तान आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा. Pakistan has pretty much done whatever it felt like, and after it got the nuclear bomb, Pakistan thought that it had a blank check and it could do anything. It could do 26/11, it could do the parliament attacks, and there was pretty much nothing that people could do about it. It gave Pakistan, a stick to terrify the world with that. Listen, we are a nuclear power, and something goes wrong. So, Right. I was giving an example to my team about Pakistan's behavior. If you've seen Sholay, शोले में वीरू चलता है ना टंकी के ऊपर, ही इज ड्रंक, सो वाटर टैंक के ऊपर, और कहता है कि बसंती से शादी करवाओ वरना अगर मैं मर गया, मैंने सुसाइड कर लिया तो यहाँ पे गांव में हैजा हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, लोग मर जाएंगे. दैट इज पाकिस्तान. सो पाकिस्तान शराब पी के वाटर टैंक पे चढ़ेगा, फिर पाकिस्तान गलती करेगा, और जब लोग बोलेंगे गलती क्यों करी तो कह रहा है कि देखो अगर मैंने ये कर दिया तो फिर मेरे पास एटम हो. इट इज द सेम वीरू जस्टिफिकेशन. A drunk man on a water tank. India, on the other hand, has a no first use policy. Yes. Also, we don't attack unless we are provoked. Ma'am, I think our thinking is wrong. There is a word in Sanskrit called Shatrubodh, the understanding of an enemy. So we should decide if Pakistan is a friend or Pakistan is an enemy and keep it binary, 0 or 1. Either Pakistan is a friend. If Pakistan is a friend, okay, Pahalgam, okay, 26/11, it's a friend and we must maintain good relations. If it's an enemy, then do not wait for a Pahalgam to punish Pakistan. See, I'm not talking about war. What I'm saying is being in an unending frame of conflict with Pakistan. Today we say that we're going to block their channels or we're going to block their Twitter handles. That should have been done ages back. Send all the Pakistanis back to Pakistan. Why are they here in the first place? Block the Indus water. Well, you should have done it years ago. Shatrubodh. And this is not the first time Pakistan is doing terrorism. Thousands of people have died. Civilian deaths apart, 1993 Mumbai apart, 26/11 apart, Pahalgam apart. There are so many incidences. If you go to the National War Memorial in Delhi, you'll realize that how many of our soldiers have we lost. If you go to the National Police Memorial, you'll see how many policemen we've lost fighting against Pakistan-sponsored terror. We do not have Shatrubodh. We don't have the concept of an enemy. Pakistan has Shatrubodh. And that is exactly what General Asim Munir was saying in a speech. General Asim Munir says that we are different from the Hindus, and that is the foundation of the two-nation theory. I'm not saying he's right. This is not a Hindu-Muslim issue. This is the India-Pakistan issue. And we must understand, we must have Shatrubodh to understand that Pakistan is an enemy state, irrespective of the fact that as of that day, Pakistan is doing terrorism against us or not. We should consistently and constantly inflict punishment upon Pakistan. It does not matter if they are peaceful. For the past 78 years, blood will flow. Whether it flows this side of the border or that side of the border is a choice that India needs to make. We are reactive people. We are reactive by nature. And this whole thing that we said that we have never attacked anybody. This is the problem with us, that we have never attacked anybody. And I fail to understand why haven't we ever attacked anybody? What's wrong with us? The army is certainly not ceremonial. The armed forces are certainly not ceremonial. And the world has seen the capabilities that we have. So exercise those capabilities. Bhai bin hoy na preet is a very popular quote. Bine na mana jalad jad gaye 3 din beet. Bole ram sakop tab. Bhai bin hoy na preet. And the core is that there is no friendship without fear. When the Prime Minister of India speaks to another head of state, friend or foe, that other head of state must know that in the oceans somewhere, in the dark depths of the ocean, somewhere close by, there is INS Arihant. And you lead from a position of fear. You lead from a position of power. Otherwise, the world does not respect this whole concept of Vasudhaiv Kutumbakam, that the world is a family. The world is not your family. Even to citizens as it is to the armed forces. Yes. So, Sushmita Sen, with due respect to the lady, she says that, we are artists and artists know no borders. I'm not an intellectual. I don't claim to be. I'm a person with average intellect. But I'm perceptive. I understand stuff. And that teaches you. And so I know stuff. इज्जत मोरालिटी की इज्जत अच्छे बन के नहीं होती. आप सोचें कि आप बड़े अच्छे हैं, हमने किसी पे हमला नहीं करा. और ये भी झूठ है. हाँ, हमने पिछले 78 साल में किसी पे हमला नहीं करा. तो चोलास, they went to Southeast Asia, Angkor Wat में मंदिर बनाए, चोलास ने बनाया, right? They conquered Sri Lanka. They reached as far as Maldives. If you look at Maharaja Ranjit Singh, the Khalsa Army's flag was flying over the fort in Kabul. If you look at General Zorawar Singh of the Dogra armies, he went right up to Tibet. तो ये कहना कि किसी ने अटैक नहीं करा, ये तो शर्म की बात है कि अटैक नहीं करा. आपका काम और क्या, आप अटैक करो ना उसको. जहां से आपको खतरा लगे, डोंट वेट. और दुनिया कहेगी, दुनिया का काम है कहना. पीपल विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस, पीपल विल ट्राई टू प्रेशराइज. इन द एंड व्हाट मैटर्स इज हाउ मच वायलेंस यू कैन इन्फ्लिक्ट, हाउ मच पावर यू हैव. दैट इज व्हाट मैटर्स. आपके पास वेल्थ कितनी है, आपके पास मिलिट्री माइट कितनी है, आपकी डिप्लोमेसी कितनी है.
When you talk about artists not being allowed in India और पाकिस्तानी channels ban करने चाहिए, इससे आपको क्या लगता है, like what difference will it make? Okay, so it is not just about one thing. If you look at it in isolation, it makes no difference. Right. It makes no difference. आप ban करो मत करो, उससे क्या terrorism बंद हो जाएगा या शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है. I'm not saying ban Pakistani artists. What I'm saying is there should be no connect between Pakistan and India. I'm saying a comprehensive, art is a very small part of it. Comprehensive, that number plus 92, which is Pakistan's country code. We as Indian citizens should not be able to contact a Pakistani and the Pakistani should not be able to contact you. It's as simple as that. Shatru Bodh. If they are the enemy, then they must be punished. If they are not the enemy and if the nation decides that no, they are friends, then let's stop Operation Sindoor and let's stop talking about Pahalgam. You know why the Pakistanis did Pahalgam or why they did 26/11? Because they know that you will not respond. Because they know that you will not punish. This time we punished them. It wasn't sufficient, but there was punishment. उनको पता है कि आप कुछ नहीं करेंगे. उनको पता है कि आप peaceful हैं और peaceful को harmless समझते हैं. And I can tell you, I can assure you, without getting into specifics now, the Indian Army is capable of exponential violence. इन्होंने पाकिस्तानियों ने देखा नहीं है. They have not seen the kind of violence that our armed forces can inflict. पूरा पाकिस्तान धुआं हो जाएगा. That is the kind of firepower that these guys have. But yes, we live in a democracy. The army chief or the navy chief or the air chief or the CDS will do exactly what the government desires. किसी को शक नहीं होना चाहिए. But it's like a hammer. We are trying to use it like a toothpick. A hammer is meant to smash. The Indian Army is a broadsword. It's not a scalpel. It's a broadsword. जब आप चलाएंगे फिर छटनी होगी. You use it, otherwise there will be no peace. आपको क्या लगता है पाकिस्तान रुक जाएगा? पाकिस्तान 3 महीने के बाद फिर 3 बंदे कश्मीर में मारेगा. अगर आपने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करा, then से पंजाब में चले जाते हैं, जम्मू में चले जाते हैं. ये सब ड्रामा चलता रहेगा. Because this is a never-ending fight. This has never stopped. It will never stop till you find the solution to this. Shifting gears, you of course speak with a lot of passion and experience. You've been a part of the Indian Armed Forces. Through my show Sandesh Se Aate, I had an opportunity to visit a few borders of India and see it for myself. When you say they don't know what our armed forces are capable of, I totally get it just by getting a glimpse of it. But you've lived that life. Yeah. So I want to begin by asking you, Major Arya, what drew you to the uniform? First of all, I am from Satra Kumaon Regiment. That is my identity. मैं Satra Kumaon से हूँ. We are a pure Kumaoni Paltan, which means that all the troops, all the Jawans are from Kumaon. तो हमारी pure Kumaoni Paltan है. My father was in the police. My father was an IPS officer. मैं थोड़ा ऐसे माहौल में था जहाँ पे वर्दी थी, तो मुझे भी लगा कि मैं देखना चाहिए. And all the friends and all, बहुत फर्क पड़ता है. तो ऐसा कोई मोटिवेशन था कि मैं फौज ही जाऊँगा, वो शुरू में नहीं था. वो बाद में हुआ मेरे. मैं SSB जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है वो अटेम्प्ट करा. मैं फेल हो गया. मैं दूसरी बार सेकंड टाइम में पास आया. So I was very relieved. And फिर एकेडमी ज्वाइन करी मैंने. अच्छा. एकेडमी में एवरीथिंग collapsed on day one. It was terrifying for me because मैं तो बड़े बाप का बेटा. मैंने कभी पानी का गिलास नहीं पिया अपने हाथ से लेके जिंदगी में. My father was a very senior government official and हमने तो बहुत सुख देखा था. एकेडमी में suddenly I realized that the Indian Army doesn't care where you're from. Yeah. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बाप का नाम क्या है, ये कौन है, क्या है. तो मेरे बाल काट दिए, मुझे गंजा कर दिया. I used to have those clip-on earrings also ना कान में. वो कान नहीं छेदते थे पर वो थोड़ा सा. दिस वाज इन 1993. तो उन्होंने मेरे बुंदे भी फेंक दिए और मेरे बाल काट दिए. आई वाज वेयरिंग अ वेस्ट, अ बनियान एंड शॉर्ट्स एंड बस वहाँ से ट्रॉमा शुरू हो गया इंडियन आर्मी का. इट वाज फर्स्ट 3 months वर वेरी बैड. देयर वाज नॉट वन सिंगल डे इन द फर्स्ट 3 or 4 months when I said that I don't want to go home because I was physically very weak and there was a lot of disorientation because मद्रास, हमारे टाइम पे तो मद्रास होता था. चेन्नई तो अभी हो गया. हमारे टाइम पे तो मद्रास होता था. दिस इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी. सो माय फ्रेंड्स हेल्प मी, माय कॉलीग्स, माय कोर्समेट्स रादर, दे हेल्प मी. अगर वो लोग नहीं होते तो मैं नहीं कर पाता ट्रेनिंग कंप्लीट बिकॉज मैं इतना कंफर्ट में पला था. प्लस आई हैड दिस because I did my graduation from St. Stephen's College, Delhi. I had this thing in mind that, you know, I'm from St. Stephen's College. The army didn't care about that. मैंने बोला यार इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाप के नाम का फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज के नाम का फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, मैं तो वैसे बोलता हूँ. इंडियन आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता. ये तो चाबी पे चाबी दे जा रहा है. You get up at 4 o'clock in the morning and you start rolling. आपको पता ही नहीं होना हवा बना रखी थी वहाँ पे. My friends, my course-mates were there and Amardeep Singh Bali, he is now a serving colonel in the army. Okay. उसने बहुत हेल्प करी मेरी. बाली ने कर्नल AP सिन्हा, आनंद प्रकाश सिन्हा, ही इज फ्रॉम द बिहार रेजिमेंट. Okay. उसने बहुत मदद करी. एक अर्नब चक्रवर्ती आर्मर्ड कोर का, अभी वो कैलकाटा में, चक्कू बोलते हैं उसको. इन लोगों ने बहुत मदद करी. सो ऑल दीज गाइस टुगेदर हेल्प मी फेस द एकेडमी. मेरे बस का नहीं था कभी. मैं तो छोड़ छाड़ के भाग जाता. आपने से बताया ट्रेनिंग के बारे में एंड मुझे भी ट्रेनिंग के लिए उनके साथ ही उठना पड़ता था एंड आई वाज ऑलवेज लेट.
Yeah. क्योंकि 6 बजे का टाइम होता था, आई वुड सी एवरीबडी इज देयर बाय 5:50, 5:55 or even 5:45 for that matter. In the academy, coming late, that is finished off in the academy, so nobody comes late in the unit. I'll tell you share a small anecdote. I was running late, and there were two ladies standing there, and I didn't know who they were. They asked me कि रास्ता क्या है जाने का or something. I forget something, and I spoke a little rudely to them because I was getting late and I was getting this thing. यार punishment मिलेंगे late. So they might have told somebody, an officer might have heard. The next 3 days, I learned how to inspect ladies. ये फट गया ना ये फट गया. ये this came out like this. So even today, when a lady comes, you get up, you pull a chair for her, you open the door for her, you say yes ma'am, and that's it. You never ever raise your voice to a lady. You never ever disrespect her, because the consequences are very very harsh in the army. But ये आपको जो लगा है उस वजह से है? Yeah, I was crawling on the road. I was like just wearing shorts. I was wearing boots, and I had nothing on top. And I was crawling with a rifle, and it was like 40 degrees. There was punishment given, and until today, I'm 52 years of age. I'm always yes ma'am. Wow. I think all men should go for this then. फौज में गलती माफी का स्कोप नहीं है. फौज में कि मैंने ऐसा सोचा, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा समझा, इसका स्कोप नहीं है इंडियन आर्मी में. Tell me what kept you going? क्योंकि ये मुश्किल है एंड आई कीप थिंकिंग कि अगर कई सारे लोग आते हैं आर्मी में और इतनी रिगरस ट्रेनिंग, इतनी टफ लाइफ, इट इज टफ राइट, और आजकल बहुत ऑप्शंस है बाहर कुछ काम करने के, बट तब भी वो कंटिन्यू करते हैं, वो रहते हैं. व्हाट इज द मोटिवेशन देयर? इट्स लाइक अ कॉलिंग. ये क्या होता है कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना, यू गो टू वैष्णव माता, कहते हैं कि तभी जाते हो जब बुलावा आता है. आपने सुना है कभी ये? हाँ जी. है ना, कि कोई वहां पे गया मंदिर में जब बुलावा. ये कुछ लोगों को बुलावा आता है. मुझे ऐसा लगता है, दैट इज व्हाट आई फील. सम पीपल you know, everybody hears, but not many people heed. To do something which is bigger than yourself, to put your nation above yourself, and as they say in the army, to sign a check with a limit to up to my life. This you cannot equate it with a corporate job, because nobody would climb the peaks of Kargil even for 100 crore rupees. Because then you have to survive to be able to spend that money and enjoy that money. Right? You can buy a Rolls Royce, certainly. But there's no point in buying a Rolls if you're dead. 99% of the Faujis that I have come across or met, they have this very deep sense of mission. It's not like, अरे यार नौकरी है यार, अच्छा चले जाएं. It's not that. If orders are given, do this. A Fauji will not say कि मैम actually earthquake आ गई थी, 8 point on the Richter scale, सारी buildings collapse हो गई, इसलिए वो नो वाला चैप्टर है ही नहीं. हाँ, they're extremely committed, extremely dedicated. Okay, tell us about your first posting. कहाँ हुई थी? मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी 1994 में, सूरतगढ़ राजस्थान में. Oh, I've been there. मैं सूरतगढ़, बहुत गर्मी होती है वहाँ. नहीं, अभी कम होती है. अभी तो वो अनूपगढ़ शाखा से पानी आ गया और हरियाली हो गई. हमारे समय पे बहुत गंदी गर्मी होती थी सूरतगढ़ में. We used to go to महाजन, एक फील्ड फायरिंग रेंज है महाजन. वहाँ भी गए. आप गए महाजन? हाँ जी, वहाँ गए. It's quite terrible in summers. And in fact, even when you mention about troops ना, आप बताते हैं जैसे कुमाऊन रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, is there a reason कि जो भी रेजिमेंट होती है वो रीजनली या उनकी मदर टंग सेम हो, ताकि ट्रूप्स में आपस में बॉन्डिंग हो? कोई इसमें रीजन है इस वजह से? एक जमाने में बहुत पहले, hundreds of years back, the officers used to be British and the troops used to be natives or Indians. फिर 1857 में जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई हुई, after that the crown took over and this system of regiments was established. जो हम कहते हैं कि फर्स्ट मराठा, सेकंड मराठा, थर्ड मराठा, फोर्थ, जैसे फॉर एग्जांपल मराठा लाइट इन्फेंट्री, राइट? ये जो न्यूमेरिकल सिस्टम है ये ब्रिटिश है, ये इंडियन सिस्टम नहीं है. अगर आप इंडियन रेजिमेंट्स पहले देखें राजा महाराजाओं के, सो यू हैव लाइक फॉर एग्जांपल जोधपुर लांसर्स. ऑफिसर्स कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, राइट? हमारी खुद की यूनिट में ऑफिसर्स में हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, एवरीबडी इज देयर. But in my unit, 17 कुमाऊं, the troops are 100% कुमाऊं. I also met the 6th Command Regiment, अरुणाचल प्रदेश में मिली जब उनकी पोस्टिंग थी वहाँ पर, और उन्होंने वही 1962 की वॉर लड़ी थी. And you know, yeah, Battle of Along, yes, जंगी 6th. Yes, you know them. बहुत तगड़ी पलटन है, बहुत तगड़ी पलटन है. It's a very very, अरे कहाँ की याद दिला दी आपने. 6 कुमाऊं. I would be interested in knowing कि आपने छोड़ी क्यों? You know, you speak so fondly of those memories of being a part of the armed forces. बार-बार मुझे लंग की प्रॉब्लम हो रही थी. एक बार तो मैं पहाड़ से गिरा. आप पहाड़ से गिर गए? हाँ, बेवकूफी की वजह से. उसमें कोई बहादुरी नहीं थी, उसमें कोई चाइनीज फायरिंग नहीं कर रहे थे, कोई सोल्जरिंग नहीं थी, उसमें बेवकूफी थी.
मेरे सामने जेसीओ साहब चल रहे थे, मैं उस समय ब्रावो कंपनी कमांड कर रहा था, जैसे कंपनी होती है अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, आपको पता ही है, सपोर्ट हेडक्वार्टर होता है, तो मैं ब्रावो कंपनी में था। मैं शिपकिला एक जगह है, करीब 14,000 फुट की ऊंचाई पर है, 13,500-14,000 फुट की ऊंचाई पर मैं शिपकिला का कंपनी कमांडर था। तो क्या हो गया कि जब मैं शिपकिला कंपनी कमांडर वी गोइंग बैक, तो मैं बेस कैंप में बुलाया ना मुझे कि हमारे जो बटालियन हेडक्वार्टर, तो वहां पे बोला कि आप आ जाओ, तो मैं ऊपर से आ रहा था, तो इट वाज बहुत स्नो पड़ रही थी, इट वाज वेरी स्लिपरी एंड ऑल दैट, तो धीरे नीचे जा रहे थे। तो एक जगह जो मेरे सामने जो सूबेदार साहब थे, सूबेदार साहब रुक गए, 5 मिनट तक रुके रहे, अपनी वो स्टिक से कुछ देख रहे थे। तो मैंने बोला साहब क्या है, क्यों रुक रहे हैं, चलिए। मैं ये भूल गया था कि ही वाज विंटर वॉरफेयर, एक विंटर वॉरफेयर का कोर्स होता है, उसमें ही हैड क्वालिफाइड एंड ही वाज वेरी अकम्प्लिश्ड। तो उन्होंने बोला था कि साहब की प्रकृति के साथ पंगे नहीं लेने। अब उस समय हम भी यंग थे, थोड़ा सा खून ज्यादा गर्म था। आई स्किप्ड, इतनी पतली सी सड़क थी, मैंने बोला रुको, मैंने उनको पकड़ा और मैंने बोला कि मैं आगे जाके लीड करता हूँ, चिंता मत करो, और मैं ऐसे कर नीचे गिरा सीधा। सो इट वाज नॉट लाइक दिस, ये खड़ी ऐसी ड्रॉप नहीं थी, अदरवाइज आई वुड हैव बीन डेड। इट वाज स्लाइटली स्लोपिंग लाइक दिस, सो आई रोल्ड डाउन एंड वेंट लाइक दिस, एंड यहाँ पे एक पत्थर था, देयर वाज अ बिग रॉक। So then I remember I came down like this and my feet hit the rock, and then there was this 2,000-3,000 feet below there is a river, Langshan Khabab, जो कि फिर इंडिया में हम लोग सतलज बोलते हैं नीचे, सतलज नदी, तो वो हिमाचल से ही आती है। So ये जो पूरा था इसका कि यहाँ पे, तो मेरा फिर मैं वहीं पे था। I was like for 4 hours or something like that, I was buried in snow. How cold was it? I don't know, मुझे मीठी सी नींद आ रही थी, ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं सो जाऊंगा, और वहां से ये लोग चिल्ला रहे थे ब्रावो कंपनी वाले के साथ, सोना मत वरना उठोगे नहीं। Then it took a few hours for them to come down and rescue me, and then they rescued me, फिर मुझे ऊपर ले गए। तो उसके बाद मेरे इन्फेक्शन हो गया लंग में, और फिर मुझे ब्रोंकाइटिस और ये सब में खांसना वांसना, फिर मैं थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर मैं हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए गया गुलमर्ग, वो भी विंटर वॉरफेयर कोर्स, फिर ऊपर ले जाते हैं वो लोग, गुलमर्ग में भी हो गया। फिर एक बड़ा मशहूर अस्पताल है फौज में, एंड मैं आपसे, आप फौज के साथ शूट करती है ना, अगर आपने 92 बेस हॉस्पिटल नहीं देखा, सो यू हैव नॉट सीन द सोल ऑफ द इंडियन आर्मी। Why would you say so? मैं बता रहा हूँ, 92 बेस हॉस्पिटल को ऐसा कोई फौजी नहीं है जिसने JNK में सर्व करा हो और जो 92 बेस हॉस्पिटल को ये ना बोले कि यार द फाइनेस्ट डॉक्टर्स इन इंडिया आर इन 92 बेस हॉस्पिटल। आप जब 92 बेस हॉस्पिटल के अंदर जाएंगी तो एक बहुत बड़ा उनका एक शो पीस है, द साइज ऑफ दीज 2 विंडोज कंबाइंड, राइट। उनका कैसे बनाया है, नॉर्मल प्लास्टिक से, और उसके अंदर मेटल के पीसेस हैं, दो आर एक्चुअली बुलेट्स टेकन आउट फ्रॉम सोल्जर्स बॉडीज, एंड दे हैव डिस्प्लेड देम, देयर नेम ऑफ द सोल्जर यूनिट, नेम ऑफ द सोल्जर यूनिट, यस। एंड देयर इज अ लेजेंड अबाउट 92 बेस हॉस्पिटल, इफ यू कम विद अ पल्स यू विल गो बैक अलाइव, and that record remains unbroken. If anybody, कितनी भी इंजरी हो उसको कितना भी हो, people have stepped over mines with their guts hanging out, you know, horrific injuries, and they go out standing. That is the magic of 92 base out of मंदिर है इंडियन आर्मी का, आप जाइएगा कभी, it's in बदामी बाग कैंट, okay, श्रीनगर एयरपोर्ट से 25 मिनट दूर है। अच्छा, हाँ, आप बदामी बाग कैंट में जाइए, और बदामी बाग कैंट के अंदर ही, you stay at बदामी बाग कैंट, but since you're shooting with the army, you must shoot with the 92 base hospital. छोटा अस्पताल है, बड़ा नहीं है वो, but I often say that 92 base hospital is like Sachin Tendulkar, you know, हाइट में छोटा है, but I mean it's. तो आप गए थे वहाँ पर? मैं वहाँ पे भर्ती हुआ हूँ, मैं I was there. When I came back, when I was evacuated from Gulmarg, I had very low pulse, and I'll remain forever indebted to the doctors and you know the doctors wear combat dress. So आपको पता नहीं लगेगा ये डॉक्टर है कि कौन है, because everybody wearing a combat dress, everybody is in uniform. मैं आपसे जानना चाहूँगी, which has been your toughest posting till date, which you would like to share with our viewers? Toughest posting was in Punch, along the. वही पुंछ जहाँ भी अटैक हुआ है. I was company commander. एक जगह गली मैदान पुंछ में, तो हमारे टाइम पे 25 इन्फेंट्री डिवीजन का हिस्सा हुआ करता था। अब पता नहीं कुछ चेंज कर दिया होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन I was again on top of a mountain, something with me and mountains. और टंगे रहते थे हम लोग तो माउंटेन में, तो वहां पे ना एक पाकिस्तानी पोस्ट थी कोबरा। कोबरा पोस्ट से वो पाकिस्तानी सोल्जर पता नहीं क्यों फायर करता था, उसको क्या था, उसकी बीवी से लड़ाई थी, मुझे नहीं पता। ही यूज्ड टू गेट इरिटेटेड, जब भी इरिटेटेड हो सवेरे शाम एक बस्ट हमारी बोला इसको क्या हो गया, कह रहा साहब कुछ नहीं हुआ, उसको शाम को फिर करेगा। रैंडमली कभी भी शूट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका सीज फायर इन इफेक्ट नहीं है, so there are times when there are snipers along the line of control and you see the enemy and it's a given that you will kill him if there is no ceasefire along the line of control. If it's open, line of control is about 760 kilometers. Yeah. It extends from Ladakh. Right. Most of it is in Jammu. Okay. Some of it is in Valley. So Pir Panjal. Yes. North of Pir Panjal is Kashmir. Yeah. South of Pir Panjal is Jammu. Yeah. And the extended area of the line of control is in Ladakh, where the line of control means the line of actual control. So are there killings that never get reported also? I guess. हमारे टाइम पे तो कभी रिपोर्ट होती नहीं थी
क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया आ गया, इतनी चीजें आ गई हैं. आर्मी हैज आल्सो गॉट अ लिटिल मीडिया savvy एंड ऑल दैट. Yeah. हमारे टाइम पे मीडिया ही नहीं था, तो फौज कहाँ से मीडिया savvy होती बेचारी, तो कुछ पता ही नहीं था हम लोगों को. एंड वी वर जस्ट कंपनी कमांडर्स एंड ऑल दैट. सो अभी तो फेंस है, सो यू नो वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल इज. हमारे टाइम पे कहते थे अच्छा ये 3 पत्थर है, ये पेड़ है, ये पानी है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, यू हैव टू डिफेंड दिस. वो हमें इतना ही पता था. हमें इसके दाएं बाएं ये पता था कि ये हमारी कंपनी है, या अगर ये इफ दिस इज द राइट मोस्ट एज ऑफ आवर यूनिट AOR, देन फिर कोई और यूनिट है. वो भी पहाड़ों के ऊपर, राइट? द टेरेन इज सो, या it's difficult to gauge. हाँ, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है. आजकल तो फिर GPS आ गया और कई सारी चीजें आ गई हैं. हाँ जी. हमारे टाइम पे तो मैं तो गलती से एक बार चला गया था PO के, तो मुझे पता नहीं था. वो 2 नाले थे, तो बड़ा नाला था, दैट वाज दी लाइन ऑफ कंट्रोल. जबीला था नाले का नाम. एक को हम कहते थे छोटा जबीला, उसका नाम कोई छोटा मोटा नहीं था, हम लोग लोकली नाम रख दिया, उसका नामकरण कर दिया. तो वो छोटा जबीला और बड़ा, तो हम तो बीच में से आए, तो मुझे नहीं पता था कि, मुझे ये लग रहा था कि पहले छोटा पार करेंगे फिर बड़ा पार करेंगे. हमने बड़ा पार कर दिया, हमें लगा कि छोटा है, अभी तो टाइम है. हम चलते गए, देन वी डिस्कवर्ड कि अब वापस चलो. पकड़े नहीं गए ना, थैंकफुली. पकड़े जाते तो पाकिस्तानी स्ट्रीट प्रिजनर्स वेरी बैडली. पाकिस्तानीज हैव दिस हैबिट दैट उनमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि निहत्ता है, जैसे हम में कॉन्सेप्ट है इंडियन आर्मी में कि निहत्ता है, निहत्ते पे वार नहीं करना. जिसके पास हथियार नहीं है ना, उसको पकड़ लो, उसके हाथ वाथ बांध लो, बट उस पर वार नहीं करना. पाकिस्तानीज डोंट हैव दैट मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट. दे विल स्पेशली अटैक यू व्हेन यू डोंट हैव वेपन्स. अरे मेरी तो कहानियां ही ऐसी है ना. नहीं मेजर साहब, अभी आपका BSF का जवान भी हमारे पास आया था, फिर आपको लौटा दिया ना बिना किसी मीडिया की खबर के, आपको हमने दे दिया. तो आप ऐसे ना बोले ना, हम ऐसे नहीं करते, नहीं हत्तों पे हम. ये पू में था, हाई एल्टीट्यूड में, पोस्ट में तो नहाया नहीं मैं. अच्छा, उस जमाने में नहाने का कोई शौक नहीं, ऐसे नहीं कि पानी गर्म नहीं होता था, बट ठीक है नहीं नहाए. तो व्हेन आई केम डाउन तो कितने टाइम तक नहीं नहाए? अराउंड आई थिंक 91-92 डेज समथिंग लाइक दैट. नहीं नहाए? मैं नहाया नहीं था. सब नहीं नहा रहे थे या सिर्फ आप नहीं नहा रहे थे? अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा. लेकिन मैं तो नहीं नहाया, काफी टाइम तक मैं नहीं नहाया. और फिर एक दिन मुझे अनुज सर थे हमारे एडजुटेंट, कर्नल आर के अनुज. एट दैट टाइम ही वाज मेजर आर के अनुज. आई पिक्ड अप द फोन, मॉर्निंग सर. हाँ, हाय गैरी, हाउ आर यू? आई सेड सर आई एम ओके, आई एम फाइन. अच्छा नीचे आ जा. अच्छा कब? अभी आजा, फोन रखते ही. तो मैंने फोन रखा. आई कलेक्टेड अ फ्यू गाइस. आई सेड हथियार लो. मैंने अपना हथियार रखा एंड वी वेंट डाउन. खाब से फिर पू एंड ऑल दैट. सो वी मेड आवर वे एंड फाइनली आफ्टर अ फ्यू आवर्स वी रीच्ड पू. तो बटालियन हेडक्वार्टर, तो फिर सिविलाइजेशन में आ गए. तो फिर अनुज सर आते मेरे पास. हाय हाउ आर यू गैरी? आई सेड सर आई एम फाइन. तो वहाँ पे एक और थे मेरे सीनियर, माय फर्स्ट कंपनी कमांडर इन सूरजगढ़ ना, ही वाज आल्सो देयर, नाउ रिटायर्ड कर्नल DS रावत, कर्नल देवेंद्र सिंह रावत. तो मुझे देख के कहते हैं, बोला कब से नहीं नहाए तू? मैंने बोला सर टाइम तो हो गया. कह रहा अच्छा पानी गर्म करो, नहाएंगे. तो मेरे बाल इतने बड़े, मैं दाढ़ी वाड़ी रखी. फिर मैंने बाल कटवाए, दाढ़ी वाड़ी शेव कराई. फिर मैं नहाने गया. तो फिर मैंने नाली से देखा काली काली चीज कोई बाहर जा रही है. तो मैंने पूछा ये क्या है? कह रहा था मैल है. देयर वाज सो मच ऑफ फिल्थ एंड माय जैकेट अंदर से काली हो गई थी. बनियान एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली लाइक हॉरिबल. देन वी गॉट डी-इंडक्टेड और हमसे बोला कि आपको JNK जाना है वहां से. तो नॉर्मली क्या होता है कि फील्ड से आप पीस में जाते हो. हमें बोला कि आप JNK चले जाओ. तो हमने बोला ठीक है JNK चले जाएंगे. तो हम लोग JNK जा रहे थे. तो जब हम नीचे आए ना, एल्टीट्यूड पे तो कुछ होता नहीं, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट. वहां पे कुछ नहीं होता आपको, मतलब ना इंसान, ना पौधे, ना पत्ते, ना कुछ, नथिंग. इट्स एरिड एब्सोल्युटली. कभी कोई याक दिख गई, कभी कोई स्नो लेपर्ड तो नहीं दिखा मुझे वहां पे स्नो लेपर्ड कभी नहीं दिखा. और एक वो कर्व्ड हॉर्न्स वाली गोट, बकरियां, वो कभी दूर से, कुछ नहीं दिखता. नथिंग विच यू कैन रिलेट विथ लाइफ इन अ सिटी और अ टाउन और इवन अ विलेज, कुछ नहीं होता. तो जब नीचे आए तो बस नीचे आ रही बस काफी चली गई नीचे. तो मैं ऐसे, मुझे रोड सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो मैं तो ऐसे मैं एवोमिन खा लेता हूँ. एक टैबलेट आती है तो एवोमिन खा के फिर नींद आती है. तो मैं सो रहा था, तो सडनली वो आया मेरे पास ना, ऐसे रोतेला मेरा CHM था. तो अल्फा कंपनी का था वो. तो मैं तो ब्रावो के साथ नीचे आ रहा था, बट वी वर ऑल कंबाइंड इन दैट व्हीकल. सो रोतेला केम. तो आई सेड हाँ क्या हुआ रोतेला? कह रहा साहब देखो, खिड़की पे दिखा रहा है. क्या देखो? मतलब क्या है? तो देन आई सॉ ही वाज लुकिंग एट अ फ्लाई, मक्खी. क्योंकि हम ना मक्खी नहीं देखी थी, क्योंकि वहां पे मक्खी थी नहीं. तो हमारे लिए बड़े लोग सेंटीमेंट वाले सब मक्खी दे रहे. अच्छा फिर हम नीचे पहुंचे तो मैंने बोला भीड़ लगा दी इन लोगों ने, क्या हो गया? तो मैं गया, मैंने बोला क्या हो गया? तो वहां पे
सीनियर जैसे भी खड़े, सब खड़े, एंड दोस गाइज वर स्टैंडिंग अराउंड अ एसटीडी पीसीओ because that is how you talk to family, right? There is no other way. There are no mobile phones, and mobile phones have not been either invented or are not in circulation, and nobody knows that a concept called mobile phone exists. And you're talking of in 1990s, right? This was it? 1990s, 97, 97, 98, yeah. So वहाँ पे गए, and then these guys, 50 guys gathered around the STD PCO. ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्यों जिंदा चीज है, ये अभी बोलने लगेगा STD PCO. तो मैंने बोला यार क्या देख रहे हो? अच्छा, फिर मैंने देखा STD PCO, फिर मैं भी देखने लगा STD PCO, क्योंकि देखा तो मैंने भी नहीं था. तो मैंने बोला अच्छा ऐसे लगता है, तो भूल गए थे. तो यही कहानियां हैं फौज की. मैं अभी 2025 बिगिनिंग में, मैं अभी जब अरुणाचल नहीं 24 एंड में मैं अरुणाचल गई थी. जी. वहाँ पर अभी नेटवर्क नहीं है. Because they are very remote areas, but अभी वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क वगैरह नहीं आता है. But it's commendable how our armed forces are still dedicated to protecting us at all given point of time. पर मैं बात बताऊँ, फौज ना टेक केयर भी बहुत करती है. फौज will go out of its way to take care of its troops. जितना कर सकते हैं ना उससे ज्यादा ही करती है फौज. तो फौज बहुत करती है. So ऐसा बहुत सारी चीजें हैं. फिर हम वहां से बोला कि अच्छा ठीक है, अब हम लोग ना, अच्छा एक्चुअली क्या था कि पूज आने से पहले हम लोग गुरदासपुर में थे. मैं गुरदासपुर का एक किस्सा सुना आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग. ये मैंने पहले भी मेंशन करा है. पंजाब में गुरदासपुर. हाँ, गुरदासपुर. तो आप लोग फिर आओगे ना वहाँ, जैसे कि फिर सूरतगढ़ में थे, तो सूरतगढ़ से फिर फाजिलका क्रॉस करेंगे, फिर आप गुरदासपुर की ओर आ जाएंगे, तो फिर हरियाली शुरू हो जाती है फाजिलका के बाद. मुझे बस इतना याद है 1995 का, बस इतना याद है कि गुरदासपुर से फाजिलका के बाद हरियाली शुरू हो जाती है. और हरियाली शुरू हो जाती है, देन एवरीबॉडी अच्छा पंजाब आ गया कि हरियाली खेत हैं किलोमीटर. तो कर्नल एंड्रूज was the CEO, God bless his soul, he is no more. हैदराबाद के थे कर्नल एंड्रूज, वेरी स्वीट, वेरी फाइन जेंटलमैन. एंडी सर ने ऑर्डर दिया कि हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे. तो हम लोग बैठे जन्माष्टमी मनाने के लिए, पूरे ब्रिगेड को हमने हुक्म दे दिया कि सबका स्वागत है, आइए, और कुमाऊं रेजिमेंट के साथ. और हमने ब्रिगेड कमांडर को बोला, ब्रिगेड कमांडर ने मना कर दिया. उसने बोला कि भाई मैं तो हूँ नहीं यहाँ पे, आई एम ट्रैवलिंग. तो रात हो गई. रात के सब लोग 10:30 क्योंकि 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म होता है, मतलब दैट इज द कॉन्सेप्ट कि रात को होगा जन्म. तो सब लोग 10:30 बजे बैठ गए वहाँ पे. वहाँ पे भजन सब चल रहे हैं, टन 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 भजन चल रहे हैं, ये भी गा रहे हैं, वो भी गा रहे हैं. रात के 11:59 पे श्री कृष्ण के जन्म में 1 मिनट का वक्त बाकी है. तो पंडित जी आए वहाँ पे. अब पंडित जी भी तो फौज के तो पंडित जी ऐसे ही होते हैं, फौज है तो दे आर नो डिफरेंट, दे आर नॉट लाइक सिविल के पंडित जी. फौज के पंडित जी फौज जैसी. तो आए वहाँ पे और सबसे पहले बोला कि मंदिर परेड. फौज में हर चीज परेड होती है, ठीक है ना. मंदिर परेड आपने देखा है ना, चेकों में देखा होगा. बस तो आए सावधान करते हुए, मंदिर परेड, सावधान बैठ. तो सब लोग बैठे ऐसे आलती पालती मार के बैठे, सब सावधान. सीओ साहब तो कर्नल एंड्रूज की तरफ देखा, राम साहब. तो सीओ ने बोला राम श्रीमान, श्री कृष्ण का जन्म करने की अनुमति चाहता हूँ. पंडित जी परमिशन मांग रहे हैं सीओ की कि मैं श्री कृष्ण का जन्म करवा दूं. तो हाँ, ये मेरी यूनिट का किस्सा. मैं तो पीछे बैठा हुआ था, सीओ सिटिंग इन फ्रंट. अच्छा, फौज में ये सब चीजें ऑर्ड नहीं लगती, बिकॉज सीओ के हुक्म के बिना कुछ होता नहीं है. इट कुड बी एनीथिंग, मतलब कमांडिंग ऑफिसर जन्म भी नहीं ले सकते. नहीं, श्री कृष्ण के जन्म की. अच्छा, पंडित जी भी क्या पूछ रहे हैं 17 कुमाऊं के, श्री कृष्ण के जन्म की अनुमति चाहता हूँ श्रीमान. अच्छा, सीओ को देखिए, सीओ कहता है अनुमति है. अच्छा, वो भी परमिशन दे रहे हैं. अच्छा, ये तो गिविंग परमिशन है. हाँ पंडित जी, अनुमति है. तो फिर यहाँ से क्या हुआ कि अनुमति उन्होंने दे दी. अनुमति देने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से मैसेज गया, और मैसेज फोन पे किसी ने मैसेज करा, और वहां पे एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा धमाका फायरिंग रेंज में, दम से, कि दैट इज द सिग्नल कि श्री कृष्ण का जन्म हो गया. फिर पालकी आई ऊपर से ऐसे ना तैरती हुई, छत पर टांग रखी थी उन्होंने, तो श्री कृष्ण का एक पालकी आई कि इसमें. तो फिर मथुरा में आए मेरे नंदलाला, फिर से सब लोग गाने लगे, और कर्नल एंडी वाज आल्सो सिंगिंग, हम सब लोग गा रहे थे. फिर बीच में 1 मिनट के बाद फोन बजता है वहां पे, और कहते हैं कि ब्रिगेड कमांडर जो है ना, ही इज ऑन द लाइन. तो कर्नल एंड्रूज आते हैं. मॉर्निंग सर. It was already morning at that time. Morning sir. He said, morning auntie, is the function over? I would love to attend. I'm just back. अब ये फंस गए भाई, अब क्या बोलते. तो yes sir, sure, absolutely sir, it will be a privilege sir, please. तो अनुज, कैप्टन अनुज को, my senior who retired as Colonel अनुज, कमांडर्स का. तो कर्नल एंड्रूज पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी, वो कमांडर साहब आ रहे हैं, दोबारा कर सकते हैं. तो ऐसा, हाँ साहब, वो कमांडर है, क्या बात है. मतलब ब्रिगेड कमांडर तो ब्रिगेड कमांडर, मतलब डाउट कहाँ से है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. फिर पालकी ऊपर गई, फिर ब्रिगेड कमांडर आए. फिर ब्रिगेड कमांडर के सामने मंदिर परेड, सावधान बैठ. राम साहब, राम पंडित जी, श्री कृष्ण के जन्म करने की अनुमति चाहता हूँ. अनुमति है. ब्लास्ट. मथुरा में आए मेरे नंदलाला. मैंने अपने सामने 2 बार जन्म देखा श्री कृष्ण का, और 17 कुमाऊं में देखा है, गुरदासपुर में. तो फौज में हुक्म चलता है. बिल्कुल जी. तो जैसे आप बता रहे हैं, श्री कृष्ण भी अनुमति से ही जन्म लेते हैं इनसाइड फौज में. तो यू नो, आफ्टर हैविंग लिव्ड अ लाइफ लाइक दिस, जब रिटायर होते हैं, लाइक यू एज वेल, हु इज नाउ
was retired. My father-in-law is an ex-Navy. अच्छा। Who's also सब उनके orders हमेशा सुनते थे, पर घर पर तो कोई order नहीं सुनता सबके. जी। How difficult is the switch from the forge life to a normal life? एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था फौज से. मैं पर्सनली बताता हूँ, बहुत फौजियों को बहुत दिक्कत होती है टू एडजस्ट. अभी तो क्या है कि सोशल मीडिया का एक्सेस है सबको, सो यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन. हमारे टाइम पे फौजीज कैंटोनमेंट के अंदर रहते थे और सिविलियंस कैंटोनमेंट के बाहर रहते थे. हमारे टाइम पे शॉपिंग मॉल्स नहीं होते थे, हमारे टाइम पे मैकडोनल्ड्स नहीं था, हमारे टाइम पे पेप्सी नहीं था, हमारे टाइम पे हमारे टाइम पे कोई जरिया नहीं था जिससे हम देख लें. अब आप देखेंगे कि आपने अरुणाचल की बात बताई, लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा ऐसी जगह है बॉर्डर पे जहाँ पे 4G आ रहा है, लोग वीडियो कॉल करके परिवार के साथ बात. हमारा तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं. मॉम डैड से बात करनी होती थी तब तो यू वेटेड एंड एस्कॉन हुआ करता था एक जमाने में. लिखा करते थे. हाँ, वो चिट्ठी एक आर्मी का एक हमारे वो ग्रीनिश ब्लूइश कलर का आता था, वो उसमें लिखते थे. और हमारे एड्रेस भी होते हैं ना कि मेजर गौरव आर्या 17 कुमाऊं केयर ऑफ 56 APO डाल दिया, वो अपने आप पहुंच जाता है. These are not our addresses are also not civilian addresses. These are Fauji addresses because this thing has to be it's confidential. Yeah. So it took some time to adjust. Yeah. Especially the mannerisms of Fauj. Yeah. It got me into trouble once or twice because मुझे तो फौज नहीं सिखाया था. But when I came to a certain company whose name I will not take, I was still getting up and pulling chairs and saying good morning ma'am and opening doors and that got you in trouble. Yeah, not trouble in the sense कि they thought I was pretty weird. Yeah, कि ये क्यों कर रहा है? And people said, has become weird. Actually होता नहीं है corporate sector में. That's true. Corporate sector में it took me my boss said call me by my first name and I didn't know how to do it. And the girls in the company, they were younger to me and they said that this is our name and because मुझे तो मैम ही निकल रहा था मुझसे and I belong to a very दस्तूरी पलटन. You've been calling me ma'am. Please call me Kamya. Okay, Kamya. So तो ये हो जाता है de facto response. So it was very difficult. I struggled a lot. मैंने सब कुछ करा. I was unemployed for a period of time. मैंने वेलवेट बेचा. मैं सड़क पे वो अपने कंधे पे वो इतना बड़ा रोल था वेलवेट का. वो मैं इधर अट्टा बाजार में मैं वेलवेट बेचता था. तो मेरे एक दोस्त था सरदार, तो उसकी एक फैक्ट्री हुआ करती थी निरंजन डेकोफ्लॉक्स. अब वो फिर चंडीगढ़ कहाँ शिफ्ट हो गया पता नहीं, इतने सालों से मिला नहीं उसको. वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड रमनदीप सिंह की फैक्ट्री हुआ करती थी. तो रमनदीप सिंह सेड कि हाँ तू ले जाए. तो ही डिडंट नो ऑफ कोर्स. सो मेरे पास स्कूटर था. स्कूटर का नाम था हरजीत कौर. तो हरजीत कौर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल नाम दिया था. हरजीत कौर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन गुरदासपुर, जिसके फादर का STD से वो था. तो सारे यंगस्टर्स जाते थे. वन डे दी कमांडर फाउंड आउट कि ये वहाँ पे क्यों जाते हैं यंगस्टर्स. अच्छा, इनकी हिम्मत तो होती नहीं थी क्योंकि इनको ना हाफ ऑफ द टाइम दीस गाइस डिडंट नो हाउ टू टॉक टू अ लेडी. सो वो हरजीत कौर वेरी ब्यूटीफुल, बट हरजीत कौर के सामने गुड मॉर्निंग मैम, इसके आगे तो उनका यंगस्टर्स हैं फौज के बेचारे इनोसेंट. सो देन इन दी ऑनर ऑफ दैट लेडी मेरे स्कूटर का नाम हरजीत कौर रख दिया. तो मैं उस पर ले जाता था हरजीत कौर को, फिर पार्क करके मैं फिर यहाँ पे. सो आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट in my life. I've done odd jobs and I've done all of that. And I removed my rank. मैंने मेजर बिकॉज मुझे ऐसी शर्म आती थी कि लोग बोलेंगे कि भारतीय सेना का अफसर ऐसे काम कर रहा है. सो मैंने नाम के सिर्फ गौरव आर्या करके मैंने अपने कार्ड्स बनाए थे. छोटे छोटे काम मैं करता था. तो बहुत लंबा एक फासला तय करा है जिसमें क्या होता है कि when you see failure, ना टू मच ऑफ फेलियर, while it gives you an understanding, it also sometimes in people, maybe weaker people like me, maybe in strong people it does not happen. But in weaker people like me, it also leads to a lot of bitterness against the world. Ki, you have mistreated me. That where you wear a tie and you go and sit in the reception of an office and the person who's supposed to give the payment to your company is not willing to meet you, and you sit there from morning till evening, 7 o'clock. He exits at 7 o'clock and he says, ki, please don't enter this office without permission. And next day when you go there, because you're under pressure and the security guard says you can't enter, and that day you say that in your heart says that there was a time when you commanded 120 men along the line of control. You faced off against the Pakistani. हम ये है कौन जो मुझे ऐसी बात कर रहा है मुझसे. So it's all part of a very bitter growing up. आपने बोला ना फौजीज कैसे फील करते हैं. It's very difficult for some of them.
अब तो फौज के बहुत रीसेटलमेंट कोर्सेज आ गए हैं नाउ. They're going to IIMs and all of that so they can adjust to the corporate life. और फौज ने बहुत करा है लोगों के लिए, बहुत करा है लोगों के लिए. लेकिन हमारे टाइम पे भी होता था, लेकिन इतना नहीं होता था जितना आज. तो टुडे तो people are generally more comfortable, far more comfortable than we were. 1993 से 1999 तक you were with the Indian Army. Yes. और उसके बाद कितने टाइम तक you remained unemployed or did odd jobs? When I came to the civil, I didn't know. I also thought that I'll open an STD-PCO booth because I didn't know anything. And father was an IPS officer. All my relatives are either in civil services or government jobs, and I did not know any better. मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता था. मुझे कुछ I didn't know anything. So then I started off. I got a job in there is a tea company called AP Surendra. It is Calcutta-based, Park Street Bank office, and they were very kind, very good people. I got a job with them. I went to a tea estate in Assam. On the 9th or 10th day there, I was stabbed. My stomach was cut open. There was a guy who put a gun to my head and 3 guys, and that guy's hand was shaking actually. तो मैं मार तो खा रहा था, लेकिन मुझे डर ये नहीं लग रहा था कि मैं मार खा रहा हूँ. मुझे डर लग रहा था कि this guy is an amateur, his hand is shaking, कहीं गलती से उसने ट्रिगर दबा दिया. So, and he had a 9mm Beretta. I don't know from where he got a 9mm Beretta. What's that? Sorry. It's a Beretta is a company. Okay. And 9mm is so it's a pistol. Okay. It's a pistol. So he had a Beretta, and then he put the gun to my head, and they were hitting me. They slashed my stomach, and then they threw me in a ditch. Why were you stabbed? वो क्यों मारने आए थे आपको? उस ज़माने में there were a lot of people, I think from Ulfa, separatist outfits, because people would say India वापस जाओ and all of that, and I was alone. But these guys from APJ group, AP Surendra group, they took very good care. And right from the people at the tea garden and right from the people at Calcutta, they were very nice. They took care. ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा होता है. मेरे साथ हो गया. I still remember. I have vivid memories of how I was invited to their office at Park Street in Calcutta, and they're very kind. They're very good people. And they said that, can we do something else for you? And ठीक है, you don't go there, but here, and we have businesses. आप बताओ क्या करें? All of that. So I said, नहीं, I want to go back and all that. Parents के पास. So they were very kind. They were very nice. But because you were the training at Indian Army, the instinct didn't come to retaliate or to pull the gun back, or was it so dangerous? No, it's like that in the movies. In real life, if a person has a gun to your head and he says kneel down, you kneel down. ये जो चक नॉरिस की मूवीज में ऐसे ये होता नहीं actually. ये होता नहीं. And that guy's hand was shaking, which means he was an amateur. Yeah. उसको भी डर लग रहा था. So I took the meeting in silence. ये मेरे ये दांत ऊपर सब तोड़ दिए लोगों ने. And they threw me in a ditch, and then I crawled out slowly because I was bleeding, and फिर मैं आ गया. लेकिन the locals and all that, जो Assamese लोग थे, वो मुझे उठा के ले गए. And they, what, the local Assamese people, they stood guard outside my room at night. ये हमारा मेहमान है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए. Very good people. Assamese are really sweet people. Very sweet people, yeah. Very sweet guy. उनको ये लग रहा था कि हमारे इलाके में आया है, हमारे राज्य में आया है, इसको चोट लग गई, इसको मार दिया किसी ने. So they unknown people stood guard. मतलब उनका मेरा कोई I didn't even know who those guys were, but मैंने बाहर से आवाज सुनी. तो I said, who are these guys? मुझे लगा कि दोबारा कोई मारने तो नहीं आए. कह रहे नहीं, they're here, and they said we'll not disturb you, and the doctor is seeing you and all that. You just relax and all that. But they were actually there, and they said we'll protect you and all that. आपको कल सवेरे जाना है ना. कल सवेरे तक जब तक आपको गाड़ी में नहीं बैठाएंगे, तब तक हमारी जिम्मेदारी. Your safety is out. And they were sitting in the rain. It was raining throughout the night. Those Assamese people, na. Wow. They were standing outside, and they said we'll stand guard and we'll protect you. And then you came back. I came back to Noida, and then I went for various interviews and all that, and then finally I got a job, and फिर मैंने धीरे-धीरे काम करना शुरू करा corporate sector में, and then I used to work for a company called the Smart Group. I don't know if you're familiar with Delhi so much. साकेत में एक अस्पताल है. Okay. 2 हॉस्पिटल हैं मैक्स के. एक पहले हुआ करता था गुजरमल मोदी हॉस्पिटल, GMMH, गुजरमल मोदी हॉस्पिटल. उसको मॉडर्नाइज करना और उसके करंट स्टेट में बनाना वो मैंने बनाया है उस अस्पताल को. आई एम नॉट एन इंजीनियर, आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, बट आई वाज द CEO ऑफ अ कंपनी, एंड आई पर्सनली लेड दैट प्रोजेक्ट, एंड आई मेड दैट हॉस्पिटल. स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ था, बट उसका तोड़ के कुछ और नया बनाना, कंप्लीट इंटीरियर्स एंड ऑल एवरीथिंग दैट आई डिड. आई विद माय टीम, अलोंग विद माय टीम. सो I used to work, and my boss was Dr. Modi. He's a big time industrialist. So he was the chairman. मैं ऑफिस में बैठा था. So a guy was supposed to come and meet me and all that. So he got delayed.
तो मैं टीवी देख रहा था, there was nothing else for me to do, so I was waiting for this guy. सर मैं ट्रैफिक जैम में फंस गया, ये वो. It was the month of July 2016 की बात है. And suddenly on the TV I saw in one of the channels, I saw that they had killed Burhan Wani, that terrorist. Hizbul Mujahideen का जो लीडर था, हेड था, उसको मार दिया इंडियन आर्मी ने. There was a panelist. In the panel there was a separatist, and this separatist, he was saying that Burhan Wani is like Bhagat Singh. And like Bhagat Singh is to you, Burhan Wani is to us. And I felt deeply humiliated कि मेरे घर के किसी बड़े की बेइज्जती करती. मतलब you're taking Shahid Bhagat Singh's name like this. And comparing to a... Yeah, मतलब कि तो शहीद भगत सिंह का तो बहुत ऊंचा दर्जा है, आप नाम कैसे लिख सकते हैं? तो I felt a deep sense of humiliation at that point of time कि यार तुम कर कैसे सकते हो ऐसे. अब I didn't know, मैंने तो कभी टीवी कैमरा देखा नहीं था लाइफ में. मैं कभी टीवी स्टूडियो के अंदर नहीं गया, मुझे कुछ पता नहीं. बट मैं फेसबुक पे तो था ही, मैं आज भी हूँ. तो मैंने फेसबुक पे एक चिट्ठी लिखी. आई रोट अ लेटर टू अ डेड टेररिस्ट. आई रोट एन ओपन लेटर टू बुरहान वानी. एंड उसमें आई एक्सप्लेन्ड थिंग्स एंड आई रोट इट टू अ डेड टेररिस्ट एक्चुअली, दैट लेटर. एंड आई सेड दैट that if you pick up weapons against the state, if you pick up weapons against India, the Indian army will find you and they will kill you, because that is what we do. That is what we are trained to do, kill the enemies of the state, kill the enemies of the nation. And I wrote it there. And मैं रात को बहुत मुझे बुरा लगा कि ये आदमी कैसे बोल सकता है, how can he speak such a thing about शहीद भगत सिंह, इसकी हिम्मत कैसे हुई. तो मैंने अपना पूरा वेंट आउट कर दिया उस लेटर में और मैं सो गया. सवेरे मैंने देखा मिस्ड कॉल में, फ़ोन साइलेंट था, मुझे नहीं पता क्या चक्कर है. मैंने देखा, मैंने बोला ये क्या है, मिस्ड कॉल्स पे मिस्ड कॉल पे मिस्ड कॉल, मिस्ड कॉल मिस्ड कॉल, ये फलाना ढिमका. एंड नन ऑफ द नंबर्स दैट आई रिकॉग्नाइज्ड. एक दो थे जान पहचान के, बाकी तो पता नहीं कौन से अननोन नंबर्स, और मुझ जैसे को कौन करेगा कॉल. एंड देन फिर मुझे जिम जाना था, तो मैं यहाँ पे एक जिम है यहाँ पे, गोल्ड जिम, तो पहले वहाँ पे जाता था. तो मैं गया, तो उसके बाद वहाँ पे अ गर्ल स्टॉप्ड मी एंड शी सेड, एक्सक्यूज मी, आर यू मेजर गौरव आर्या? I said, yes, ma'am. And she offered her hand and she said, thank you for writing that letter. And then it suddenly struck me that कुछ हुआ है. And I didn't do gym that day because she met me outside at the reception. फिर मैंने गया, अपनी गाड़ी में बैठा और फिर मैंने अपना फ़ोन देखना शुरू करा. मैंने जो भी था, तो उस ज़माने में तो इतना भी नेटवर्क नहीं था कि हम, पर आता था ये सब, है ना, all these things were there. And then I went and I saw the other things and suddenly I realized कि something momentous has happened, something life changing has happened. कुछ हुआ है ये, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है मेरे साथ. And then I called up one of the landline numbers. और मुझे नहीं पता कि किसका लैंडलाइन नंबर है. तो मैंने कॉल करा, तो मैंने बोला कि यहाँ से कॉल आया था, आप कौन बोल रहे हैं सर, आपका नाम सर? मैंने बोला मेजर गौरव आर्या, प्लीज होल्ड ऑन. खट ट्रांसफर हुआ. एंड दिस पर्सन एट द अदर एंड ऑफ द लाइन सेड, गौरव, आई एम लेफ्टिनेंट जनरल सो एंड सो XYZ फ्रॉम आर्मी हेडक्वार्टर्स. मैं तो खड़ा हो गया. मैंने बोला मुझे एक मेजर को जनरल कॉल, मेरा आज तक नहीं होता ऐसा लाइफ में. जनरल्स डोंट कॉल मेजर्स यार. जनरल का क्या मतलब है मेजर से? हमें जनरल साहब दूर से दिख जाए वही बहुत गनीमत है. तो फोन कॉल आ रहा है जनरल साहब का. मतलब आई एम कॉलिंग बैक, बट ही कॉल्ड एंड ही डिडंट से एनीथिंग. ही सेज, यू रोट द ओपन लेटर टू बुरहान वानी. ही सेज, वेरी वेल डन सन. एंड ही केप्ट द फोन डाउन. ये 5, 7, 10 सेकंड की कॉन्वर्सेशन हुई. वेरी वेल डन सन, कीप इट अप, एंड क्लक फोन रखा. And then everything started changing, and then media started contacting me and they started asking कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं, आप इस मामले में क्या सोचते हैं. And that is how everything changed, and that is how I entered media, purely by accident. So you're saying ये सब बस अभी 2016 के बाद से शुरुआत हुई है इसकी? हाँ, फिर अर्नब का कॉल आ गया मेरे पास. वनडे अर्नब कॉल. तो अर्नब की डिबेट में तो जाते थे. अर्नब को मैं जानता हूँ कॉलेज टाइम से ना. तो अर्नब वॉज इन हिंदू कॉलेज, आई वॉज इन सेंट स्टीफेंस. तो हमें हिंदू कॉलेज पार करना पड़ता था. कमला नगर एक मार्केट है, तो हम लोग केनाग्स बोलते उसको. बस वन डे आई रोट अ कॉल दैट आई एम गौरव, आई एम क्रिएटिंग एक नया मैं वो बना रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग. एंड आई सेड, नो व्हाट्स इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड रिपब्लिक. तो आई सेड, ये थोड़ा सा नाम तो अच्छा है यार, रिपब्लिक. सो वेयर इज द ऑफिस? गौरव, करेंटली देयर इज नो ऑफिस. अच्छा. सो आई वाज टोल्ड टू रिजाइन फ्रॉम माय जॉब. Okay. I was the CEO and president of a company to join an organization which did not have an office, and I took a leap of faith and I joined because I thought it was good, and it turned out to be quite fruitful for me. It turned out to be quite fruitful. Yeah. So when you go on news channels and when you talk and when you share your thoughts and opinions, of course you speak with a lot of passion. Yeah. So I want to know, does it make you feel liberated to share this? And also it comes with a lot of risk, क्योंकि आप कई बार अलग-अलग देशों के बारे में इतना openly बोल देते हैं news channels पे. Is that not risky? Yes. You must have seen when you entered the office, आपने देखा होगा. That is all because of that. The police protection.
Yeah, everything, and lots of them armed. And that is simply because when you say things, मेरे में फिल्टर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, मैं कभी, बिकॉज आई हैव अ यूट्यूब चैनल, मैं कभी गाली नहीं देता. आई विल पुश दी एनवेलप, पर मैं गाली नहीं देता कभी, है ना. मैं नहीं देता, बट आई कैन बी फेरोशियस विदाउट अब्यूजिंग. व्हाई शुड आई? तो मैं कभी नहीं देता. लेकिन यस, लश्कर तैयबा एंड जैश मोहम्मद एंड ऑल दीज टेरर आउटफिट्स, दे हंग माई एफिजी इन पाकिस्तान across cities. They burnt my effigy in Pakistan. I constantly receive death threats from Khalistanis, from Pakistanis. And now, of course, latest is that the Iranians, it seems, don't like me any longer. So they have complained about me to the Ministry of External Affairs कि बुरा आदमी है, मेजर गौरवारी, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर के लिए ऐसा ऐसा बोलता है. तो ये सब चलता रहता है. ये सब सी, when you speak, it comes at a price. एक कीमत है इसकी, है ना. और आपको ये कीमत, आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ गाय हु विल डाई इन अ हॉस्पिटल बेड विद अ पाइप अप माय नोज. मेरा काम सड़क पे ही होगा कभी, किसी कोने में, बिकॉज दैट इज द वे आई हैव स्ट्रक्चर्ड माई लाइफ. मैंने अपनी जिंदगी वैसी बना ली कि जितना धमकी देंगे मेरा वॉल्यूम और बढ़ जाता है. समबडी हैज टू, देखो बात ये नहीं, देयर आई हैव अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स एंड पीपल से नहीं, एंड दिस इज नॉट द वे, एंड ये वो, ही डज नॉट रिप्रेजेंट अस, एंड ऐसे नहीं, या तो वो दोस्त है या वो दुश्मन है. और मुझे ऐसा इंटेलेक्चुअल बनना भी नहीं है कि बड़े नुआंस्ड अप्रोच होनी चाहिए और लेयर्स अपॉन लेयर्स. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लेयर्स, मुझे नुआंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है. पर थोड़ा सोच समझ कर बोलना या फिल्टर्स लगाना, I mean that can not get you in trouble, right? That will keep you safe as well. But you don't feel like मैं इतना बोलता हूँ या न्यूज़ चैनल्स पर चिल्लाकर बोलना. Do you think that is often criticized? Yeah, it is criticized, and a lot of people from India don't like what I say, and also the way I say it. But I guess that is the. I'm not saying I don't care. I don't have that attitude कि मुझे क्या फर्क पड़ता है. ऐसी बात नहीं है. लेकिन मुझे वही आता है. As I said, I'm 52. अब मैं, और आप मुझे कोई नई, You can't teach an old dog new tricks. वो कहावत है ना. अब आप मुझे कोई नया तरीका कि गौरवारी आप थोड़ा सा ऐसे करके बोल लें या इसको ऐसे करके बोल लें, वो होगा नहीं. मैं सीख नहीं पाऊंगा. मेरी वो उम्र सीखने की चली गई है. आई हैव दिस क्लियर कॉन्सेप्ट इन माई माइंड कि देश का दुश्मन कौन है, राइट? ये अधिकार किसने दिया मुझे? ये मैंने खुद को दिया अधिकार. डू आई स्पीक फॉर द इंडियन आर्मी? नो, आई एम टू स्मॉल अ पर्सन टू स्पीक फॉर द इंडियन आर्मी, एंड इंडियन आर्मी डज नॉट नीड मी टू स्पीक फॉर देम. दे हैव देयर ओन system in place. Do they ever tell you tone down a little, don't say this, don't say that? Officially nobody has told me. Indian Army ने कभी officially मुझे ये नहीं बोला कि ये बोलो, ये मत बोलो, धीरे बोल, ऊपर बोल, ये आज तक नहीं बोला. मेरी यूनिट वाले डांटते रहते हैं मुझे, बिकॉज सीनियर्स हैं, उनके लिए बच्चा हूँ मैं. They're also afraid of your safety. आप नहीं डरते? नहीं, देखिए, डर तो सभी को लगता है. अगर मैं बोलूँ कि मेरा तो इंडियन आर्मी में, मैं कई बार बोल चुका हूँ, मेरा इंडियन आर्मी में रिकॉर्ड है आज तक जो ना कभी टूटेगा. मेरा रिकॉर्ड ये है कि मैंने 48 घंटे के अंदर हनुमान चालीसा सीख ली लाइन ऑफ कंट्रोल में. जब गोलियां चलती हैं तो हनुमान चालीसा बहुत जल्दी आ जाती हैं. तो ऐसी बात नहीं है कि मैं डरता नहीं है वो सब, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ, वो मैं देश हित में कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा बोलने का तरीका ठीक है. जैसे कि ईरान वाला वाकया जो हुआ अभी, अबाउट दिस ईरान थिंग. The Iranian foreign ministry is very upset with me, and they're tweeting and they're saying this and that. You supply weapons to Pakistan. You take Pakistan's side on Kashmir. The same Kashmir where 26 of my brothers were killed in Pahalgam. You want me to speak politely to your foreign minister? No, I'm sorry. It doesn't work that way. मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे ना ईरान से कुछ चाहिए, ना वो मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ this needs to be put out in the open. शत्रुबोध बहुत आवश्यक. हम लोगों में शत्रुबोध है ही नहीं. And that is what I'm trying to say, that ये दुश्मन है, तुर्की दुश्मन है, अजरबैजान दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, और ये दुश्मन रहेंगे. And they will seek to harm you. कब हम लोगों को ये एहसास होगा, कितनी जानें चली जाएंगी, जिसके बाद हम लोगों को एहसास होगा कि ये दुश्मन है. But बेचारे, how do you verify news कि ये कहाँ से आ रहा है या कौन सप्लाई कर रहा है? या अभी भी ये डिबेट हो रही है कि पहलगाम पे जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान से थे या नहीं थे. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाउ डज इट मैटर? जो पुलवामा में जो टेररिस्ट था, आदिल अहमद डर था उसका नाम, वो तो लोकल कश्मीरी था, वो तो नहीं था पाकिस्तानी. लेकिन फिर आपने जाके बालाकोट में स्ट्राइक्स क्यों करी जब वो पाकिस्तानी नहीं था? हाउ डज द पासपोर्ट मैटर? ये करा धरा या पाकिस्तान का है? कश्मीरियों के दिमाग में, जो टेररिस्ट हैं, उनके दिमाग में जहर किसने डाला? उनको पैसा किसने दिया? उनको ट्रेनिंग किसने दी? उनका आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन क्यों किया? आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे फेंसिंग कर दी आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वहां से आना मुश्किल कर दिया इंटरनेट का इस्तेमाल करके. आदिल अहमद डर को किसने सिखाया कि तुम अपनी जान दे दो और 40 CRPF के जो हमारे भाई हैं उनकी जानें ले लो? उसको किसने सिखाया? ये आइडियोलॉजिकल जहर है. ये हम लोग बोलते नहीं है, हमें बोलना चाहिए. ये जहर है. और प्रूफ किसको चाहिए? कौन मांग रहा है प्रूफ? मुझे तो नहीं समझ में. आई डोंट रिक्वायर एनी प्रूफ. व्हाई डू यू रिक्वायर प्रूफ टू हैमर पाकिस्तान?
दिस शुड बी योर डिफैक्टो रिस्पॉन्स। टोको सवेरे उठ के, इसमें सबूत क्या चाहिए? और ये कोर्ट है मिलॉर्ड, मेरी फाइल आई है, हद ही हो गई है। ये तो ऐसे लोग बात करते हैं, अजीबोगरीब बात करते हैं कि क्या प्रूफ है, इसका क्या प्रूफ है? कौन? नो प्रूफ, यू डोंट रिक्वायर प्रूफ, यू डोंट रिक्वायर प्रूफ। ये कोई केस नहीं चल रहा कोर्ट में। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब आप में ताकत होती है दुनिया आपकी इज्जत करती है। When you have the power to terrify your enemy with brute force, then the world will respect you. World does not respect philosophers and poets and thinkers. Plato did not create empires, right? Socrates did not create empires. Alexander created empires. तलवार की धार से राजपाट चलता है। राजपाट प्यार मोहब्बत से और फिलोसफी से नहीं चलता। If India has to be strong, it has to be economically strong, diplomatically strong, and militarily strong. And all these three things must go together. फॉग ऑफ वॉर, मिस इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यूज, ये हर जगह रिपोर्ट हो रही है। पाकिस्तानी कुछ कह रहे हैं, इंडियंस कुछ कह रहे हैं, और जनता कंफ्यूज है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट वे टू अप्रोच दिस? किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है? कराची पोर्ट फॉर एग्जाम्पल, राइट, उन्होंने ट्वीट करा एक बार कि ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, विच यू रिपोर्टेड इमीडिएटली 1 hour लेटर दैट वाज अकाउंट इज हैक्ड एंड दैट हैज नॉट हैपेंड। देखिए, यू कांट एड्रेस इट, यू कांट एड्रेस इट। मुझसे कहते हैं मेजर साहब आपने फिर क्या यार, उसने ट्वीट करा कि हमारा पोर्ट अटैक कर दिया इंडिया ने। वेरीफाइड अकाउंट है, आपने चेक करा, वेरीफाइड अकाउंट है, ब्लू टिक है, आपने पुराने ट्वीट्स देखे, हाँ कुछ साल पुराना अकाउंट है। और कैसे वेरीफाई करोगे? और कैसे वेरीफाई करोगे? आप शहबाज शरीफ को बोलोगे कि तू गीता पे हाथ रख के कसम खा के जो कहेगा सच कहेगा? बाद में उन्होंने बोला है, अब लोग कह रहे हैं कि आपने गलत न्यूज दी। और मैंने क्या गलत न्यूज दे दी यार? बात ये होती है, फॉग ऑफ वॉर होता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज अ रियल थिंग। वी विल से स्टफ to confuse the Pakistanis. Pakistanis will say stuff. आपने शहबाज शरीफ का ट्वीट देखा? कहता है we have won the war. हाँ, वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, वो कहता है we have won the war. कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। उसने बोला हम जीत गए, भंगड़े शंगड़े डालो, मिठाइयाँ बांटो, we have won the war. अब आप बोलते रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। और पाकिस्तान ऐसी कौम है कि 6 महीने के अंदर एक दिन डिक्लेयर कर देंगे, जिस दिन सीज फायर हुआ था, कि इस दिन हमारे टैंक लाल किले तक गए थे दिल्ली में और सब परचम लहराया था। इंशाल्लाह हो जाएगा। आप डील करिए उनके साथ, वो करेंगे। 1965 की लड़ाई को भी वो लोग सेलिब्रेट, एक दिन छुट्टी है पाकिस्तान में, एक दिन पूरे दिन छुट्टी है, हॉलिडे है कि 1965 की लड़ाई हम इंडिया से हार गए। इंडिया ने लाहौर के ऊपर अटैक कर दिया था और हमने उनका अटैक रोक दिया, और इंडिया ने हमें बताया नहीं, बुज़दिल की तरह रात को अटैक कर दिया। इनको किसी ने बताया नहीं कि 1964 में रण ऑफ कच्छ ने पाकिस्तानी फोर्सेस ने अटैक करा था। इनको ये नहीं बताया कि आयूब खान जो था ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने अखनूर में अटैक कर दिया, तब इंडियन आर्मी ने अटैक करा लाहौर पे। इनको सीक्वेंस, इनको आधी अधूरी चीज बताते हैं। लेवल्स ऑफ लिटरेसी आर वेरी लो इन पाकिस्तान, दे बिलीव वेरी नॉनसेंस। तो देखिए, जहां तक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात है, ठीक है, जहां तक फेक न्यूज की बात है, लड़ाई में फेक न्यूज होती है, एंड एट दैट मोमेंट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वेरीफाई विद ऑल योर सोर्सेस। दिस इज नॉट टू डिफेंड सच न्यूज, दिस इज नॉट टू से दैट इट्स ओके या आई एक्सेप्ट, नो। ऑल आई एम सेइंग इज दैट इट्स लाइक सेइंग कि सड़क पे चलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। इट डज नॉट मीन दैट वी से एक्सीडेंट होने चाहिए, नहीं, इट्स अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट होते हैं। फेक न्यूज़ इज लाइक दैट। और अभी तो सोशल मीडिया है, which makes it even worse, doesn't it? आप ये अपना नाम लेके बोल दीजिए कि यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इफ 1 million people like your tweet, पता लगा who's the president of the United States, गूगल पता लगा, आपका नाम ले लेगा। That's how it works. That's how the algorithm works, ना? You can replace Donald Trump. Yeah. आप लिखवा दीजिए, हो जाएगा। बट आई वांट पीपल टू बी अवेयर, जो भारत के ऊपर ड्रोन्स चलाए हैं वो कहाँ से आए हैं? टर्की से आए हैं। सो नेक्स्ट टाइम यू वांट टू गो टू द हाया सोफिया और एंजॉय अ हॉलिडे इन टर्की विथ योर फैमिली, आई मीन फील फ्री, जस्ट गिव इट अ थॉट बिफोर यू डू, बिकॉज टर्की इज आर्मिंग पाकिस्तानीज टू किल इंडियन सिटीजन्स। ये सोच के फिर आपको जाना है, मतलब यू हैव माई बेस्ट विशेस, और मैं क्या करूँ? शत्रुबोध होना चाहिए। हु इज योर एनिमी? ईरान कर रहा है। ईरान इज funding Hamas, it's funding the Hezbollah, it's funding the Houthis. Iran stands with Kashmiri terrorists or Pakistani terrorists operating in Kashmir, I should say that. Pakistani terrorists operating in Kashmir. Iran उनके साथ खड़ा हुआ है. And when their foreign minister comes, they say, no, Iran ने मुझे criticize करना, कहने की, no, in Iran the guest is supposed to be, you know, have come with the blessings of God. ये मुझे अतिथि देवो भव अपना Iranian version सिखा रहे हैं. These are the people who kill little girls because they are not wearing the hijab. पता है ना आपको? They kill women. Iranians kill women, their government. I love the people of Iran. I have a lot of respect for the people of Iran. मैं बहुत इज्जत करता हूँ ईरानी लोगों की, मैं बहुत इज्जत करता हूँ. But their leadership is a terrorist leadership. And whatever price one has to pay for speaking out, one pays the price. जैसा मैंने आपको बोला ना, I'm not going to die in a hospital bed. I don't think so. What is your message to the civilians, to Indians
who are watching this about their safety as well as what lies ahead. How should we prepare ourselves? How should we support the Indian Armed Forces? I think it's important that Indians realize who our friends are, who our enemies are. And even amongst friends, how much can you rely on those friends? That is very important. And as far as the ceasefire thing is concerned, and this entire Operation Sindoor is concerned, be safe with you and your families, and everything is going to be okay. Trust the armed forces. They will always deliver. And be prepared. Never trust anything that comes out of Pakistan. They live on information warfare. That is how the entire state is constructed. That is what they do. That is what they believe in. And I think Jai Hind. Jai Hind is, by the way, I don't know if people tell you, but Jai Hind is actually not a greeting, it's a promise. Jai Hind is a promise that India will win. Whatever the cost the soldier has to pay, India will win. That is the true essence of Jai Hind. So Jai Hind to you. Jai Hind to you too. Thank you so much for this wonderful conversation. It's been wonderful talking to you. Thank you. You've really informed us, educated us about the current scenario, and it was lovely knowing your personal stories as a part of Indian Armed Forces. Thank you. Thank you very much. वंडरफुल वीडियो। आज पहली बार मेजर साहब को इतना कुछ हमने सुना कि वो इस तरह अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि मेरी लाइफ कितनी टफ थी, किस तरह स्ट्रगल की, आर्मी में कैसे आया, वहाँ पर किसी की नहीं चलती, भले ही किसी बड़े आदमी का बेटा क्यों ना हो, लेकिन सबको बराबर से देखा जाता है। और किस तरह उन्होंने तकलीफ़ें देखी वहाँ पे। और आज जो उनके साथ करली टेल्स काम्या जी के साथ जो बातें शेयर की अपने बारे में ना, बहुत सुन के अच्छा लगा। हंसी भी आ रही थी जिस तरह बोल रहे हैं ना कि मेरी मौत जो है ना हॉस्पिटल के बेड पे नहीं होगी भाई, बाहर ही कोई ना कोई मुझे गोली मार के चला जाएगा। तो ये मतलब बहादुरी, हौसला, निडर जो है ना इंसान, ये मेजर साहब डरते नहीं है किसी से। ये इनका जो है ना मुझे कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। और पाकिस्तान के बारे में जो बातें की ना कि पाकिस्तानी डबल गेम खेलते हैं, उससे पैसा लिया, फिर उसका काम तमाम किया, फिर उन्हीं से तालिबान से भी लिया, फिर अमेरिकन को धोखा दिया। तो अगर ऐसा होता ना, अगर मेजर साहब इस बात में थोड़ा होता सच्चाई, वो हम पे कभी यकीन नहीं करते, ट्रंप भी हमें छोड़ देता इधर, अभी ऐसे ट्वीट भी ना करता कि हम पाकिस्तानियों के साथ ट्रेड करेंगे, वो अच्छे हैं। तो कुछ बातें सही भी थी मेजर साहब की। मुझे तो बड़ा मतलब अच्छा लगा इनको सुनकर। बोल रहे थे कि लेडीज़ की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, ये मुझे आर्मी में पता चला कि भाई वुमेन्स के साथ कैसे पेश आना है, यस मैम। और हर बार बोल रहे हैं, आज तक मुझे वो डर है कि जब उनको कुछ उन्होंने डिसरिस्पेक्ट कर दी थी ना किसी की, तो उनकी जो पनिशमेंट उनको मिली थी आज तक वो याद कर रहे हैं कि मेरी कोहनी में से फट गया था। तो वो बड़ा कुछ मतलब इमेजिन कर रहे थे, बता रहे थे। तो वो भी बड़ी बात है कि मेजर साहब ने इस तरह के दिन भी देखे हैं भाई। बोल रहे थे कि एक दिन पाकिस्तान में भी चला गया था, पीओके में, वो नदियाँ कुछ थी, दो छोटी जमील पता नहीं क्या नाम था, वहाँ से वो चले गए थे। तो और भी दुश्मनों के बारे में बताया कि बड़े दुश्मन मेरे बन गए हैं। एक बार तो किसी ने अटैक भी कर दिया था मेजर साहब पे, लेकिन मेजर साहब के अंदर बिलीफ है। ये जो है ना मेजर साहब बोलते हैं बस शत्रु बोल, जो भी है ना सामने आओ। ऐसे नहीं कि बस भाई जब तक कोई हमला नहीं करता तब तक हम चुप करके देखते रहें। वो इंडियन गवर्नमेंट को भी समझाते हैं भाई तुम आओ सामने, पाकिस्तानी दुश्मन है ना तो उन पर अटैक करो। ऐसे नहीं कि बस फलाना आया भाई हमला कर दिया। 26/11 पहलगाम, बुरहान वानी का भी जिक्र किया, बोला ओपन लेटर लिख दिया उसको मरे हुए को लेटर लिख दिया। फिर मीडिया वालों ने फ़ोन की, जर्नल ने तारीफ की, वेल डन बेटा, ऐसे ही करते रहो। तो उसके बाद ये जर्नी भी स्टार्ट हो गई। फिर फेक न्यूज़ का भी बताया कि फेक न्यूज़ देखकर लोगों को किस तरह कंफ्यूज करते हैं, और पाकिस्तानी भी ऐसे ही करते हैं, झूठी खबरें देके और खुश हो जाते हैं, तो छुट्टियाँ करने लग जाते हैं। तो बड़े किस्से शेयर किए आज मेजर साहब को सुन के ना, बड़ा अच्छा लगा। और उनकी लाइफ जो है ना बड़ी टफ है वाकई में यार, क्या बात है। हाँ भाई, मेजर साहब की ना लाइफ के बारे में तो बड़ी भाई जानकारी मिल गई। और मेजर साहब तो बड़े हंसमुख आदमी यार, अपनी लाइफ के किस्से बता दिए। फौज में जब था भाई वो हमें बताया। तो यार ये मेजर साहब का जो चेहरा है ना बड़ा अच्छा है। वैसे तो अपने चैनल पर बड़ी हमें गालियां देता है, समझाता रहता है भाई पाकिस्तानी ऐसे है, भाई आर्मी ऐसी है। और ये मेजर साहब को हमने देखा तो यार मज़ा ही आ गया। ये मैडम जी को भी भाई बड़ी अच्छी बातें बता रहा था, अपनी चोटों के बारे में बताया,
बड़े दुख दर्द भी अपने बताए भाई। कहता है मुझे बड़ी धमकियां मिल रही हैं खलिस्तानियों से, पाकिस्तानियों से। ये भाई मेजर साहब को बड़ा दिलेर आदमी है, इतनी धमकियों के बावजूद भी ऐसा काम कर रहा है भाई, अपने देश के लिए अपनी आवाज उठा रहा है, अपने लोगों के फौज के साथ भाई, ये बड़ी बात है। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल में जब बैठा था उधर ड्यूटी थी, तो कहता है हर रोज एक पाकिस्तानी गोलियां चलाता है बैठे बैठे भाई। भाई ये उसका भी काम है ना भाई, होशियार करना कि कोई आए ना जाए। तो मेजर साहब भी भाई बड़ा अच्छा लगा आज उसके किस्से जानकर भाई साहब। एक तो बड़े एक दहशतगर्द को ही समझा दिया फेसबुक पर भाई, जवाब दे दिया। तो उसके बाद मेजर साहब की लाइफ बदल गई और हमें बड़ा अच्छा लगा आज मेजर साहब को ऐसे सुनाना भाई, जबरदस्त। नहीं, मेजर साहब को तो आपने अच्छा सुना। इस लड़की ने इस लड़की ने बोला पहलगाम में जो वाकया हुआ था वो तो बताओ, तो उस पर कल्टी मार गया, वो सच्चाई नहीं बताई, असल गुनहगार कौन है। फिर आया पाकिस्तान के ऊपर, ईरान के ऊपर, अजरबैजान, ये तुर्की, ये सारे दुश्मन है भाई। ऐसे कैसे दुश्मन होंगे? अमेरिका वाले भी ऐसे थोड़ी देंगे पैसा हमें, और तालिबान भी ऐसे थोड़ी देगा। झूठे अगर होते ना तो कब के एक्सपोज हो जाते मेजर साहब। बाकी जो आपने जो पर्सनल बातें बताई, आपका जो जितना भी सारा स्ट्रगल था, जवानी के बता रहे थे, कानों में बड़ी बड़ी बालियां थी, उतार दी इन लोगों ने, बड़े बड़े बाल थे भाई। मेरे को दोस्त हौसला दे रहे थे भाई आप कर सकते हो, वरना बोलता मैं कब का भाग जाता। मेजर साहब भी बड़ा भाई फनी बंदा है। और जो लिख रहा था भाई, जो मरा हुआ था उसके ऊपर ट्वीट किया था फेसबुक पर भाई, फोन आई, जनरल साहब ने बोला वेरी गुड, आप काम करते रहो। ये सच्चाई है ना, बता दो ना लोगों को। तो आप जो सच्चाई है ना लोगों को वो बताओ। जो मीडिया आप बोला कराची तबाह हो गई, तो आप बोला कि झूठ चलता रहता है, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है मेजर साहब, सच्चाई जो है ना वो बताओ, जो लोगों को भी पता चले। आपने बोला फूक गया, भाई फूका कैसे इधर? बोलते हो किसी ने वो ट्वीट किया था तो मैंने वो देखा, वेरीफाइड था, तो चलो मैंने भी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं मेजर साहब। बाकी जो आपकी स्ट्रगल थी वो अच्छी है। जो आपने बताया किसी ने घोप दिया था मुझे, लोगों ने मुझे बचा लिया था, बोला कल बिठाएंगे आपको गाड़ी में। डरते भी है, फिर बोलते नहीं छोड़ूंगा नहीं, सच्चाई कर भाई, बिल्कुल सच्चाई के रास्ते में चलो। बाकी हमें मजा आ रहा है देखकर। मैडम के भी जो सवाल थे ना आपने वो नहीं दिए। हाँ, असल गुनहगारों का बताया नहीं आपने। आया पूछ रही थी मैडम वो पहलगाम वाला वाकया वो कौन था, उसने बोला उस पर कल्टी मार गया, घुमा घुमा कर पुलवामा का बता दिया, पुलवामा का वो भी कश्मीरी बता दिया भाई। आपके यहाँ होता है ना भाई, हमारे यहाँ होते तो निपटा देते कब के। ऐसे पाकिस्तान भाई खुद ही मरा पड़ा, वो हम खुद ही परेशान है इस इन टेररिस्ट से। हम भी नुकसान में भाई, इतने सालों से हम भी बोलते हैं ये मरे साले, कम हो तो हम भी सुकून में रहे। ताकि मेजर साहब है ना कल्टी मारता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उनके फादर भी आईपीएस ऑफिसर हैं, बोल रहे थे, पुलिस में कुछ उनका बड़ा होता था। फैमिली सारी इनकी मतलब सिविल सर्विसेज में थी, गवर्नमेंट जॉब थी, तो इस वजह से मेजर साहब का भी शौक था कि आर्मी में आ जाओ। और एक किस्सा भी बताया ना, कोई बड़ा कर्नल आया, जनरल, वो बड़ा के मंदिर में दूसरी बार कृष्णा जी का नाम बोलो तो कृष्णा जी आ गए भाई, परमिशन ले रहा था कृष्णा जी को पैदा करूं। तो ये भाई आर्मी के बड़े अनोखे किस्से थे आज हमने मेजर साहब ने सुने। और एक अस्पताल का भी बताया, 92 कोई बैच थी, बोल रहे हैं कि वो बड़ी ऐसी अच्छी बैच है कि मतलब कटा हुआ इंसान हो ना वो भी उनको तैयार कर देते हैं, ऐसे डॉक्टर हैं। तो इंडियन आर्मी के मेजर साहब ने भी बोला ना एक हॉस्पिटल मैंने भी बनाया था, बोला वो बनना पड़ा था, थोड़ा उसका मरम्मत मैंने की। यार वो कौन सी है हम भी देखेंगे जरूर। हाँ, वो पता नहीं कौन सी थी भाई, 92 बेस वो बड़ा बताया, उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि भाई कि वहां पे अगर कोई नहीं गया तो फिर देखा ही नहीं कुछ। तो बड़ा अच्छा लगा आज इंडियन आर्मी के बारे में जानकर, मेजर साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा पता चला, और जो है उनके पाकिस्तान के बारे में भी इनके क्या ख्याल है वो भी पता चल गया कि पाकिस्तानी बोल रहे कभी फिर से आएंगे वो हटने वाले नहीं है, नहीं हम नहीं आएंगे मेजर साहब, हमारे वालों ने बस तौबा कर ली, सीज फायर हो गई ना, मतलब जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी अच्छा लगा आपको सुनकर, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो हमें देखते हैं कि इस चैनल को हम जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। इंशाल्लाह इसी पे अब कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।